Hi there, a very good afternoon. You're watching Times Now with me, Kitty Behel. Let's start with the top focuser. The rescue operation has been nothing short of extraordinary in Uttarkashi, with teams working tirelessly day and night to reach the trapped workers. But with each passing day, their operations are being tested. For the fourth time, the auger machine has hit another obstacle and the damages have rendered it irreparable. And now, the teams are exploring various options. The most viable one right now is the vertical drilling. That is what we are learning at this point in time. Chief Minister Pushkar Singh Dhami has also informed that the new machine is being brought to Uttarkashi from Hyderabad, and it's most likely to reach by evening today, and the manual drilling option that is being considered now, that is going to take place. देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग की जो मशीन है अपने दर्शकों को दिखाई थी जब उसको यहाँ पर सुबह स्टैंड बाय पर रखा गया, और उसके बाद की तस्वीरें जब उसको यहाँ से मूव कराकर ऊपर टनल की तरफ पहुंचाया गया। अभी एक स्पॉट पर, एक जगह पर ले जाकर मशीन को रखा गया है। अभी देखिए, बैठकों का दौर यहाँ पर जारी, और सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ में जो साइड ड्रिलिंग, यानी कि टनल के ठीक सामने अगर आप खड़े हुए हैं तो बाई तरफ से जो ड्रिलिंग यहाँ पर की जानी थी उसको रिज्यूम किया जाएगा। शुरुआत देखिए, जब 5 वे एक्शन प्लान जो यहाँ पर लाया गया था, शुरुआत उसी दौरान थोड़ी की गई थी, लेकिन जब ये लगा था कि ये प्लान जो है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा तो उस काम को थोड़ा रोका गया था। लेकिन अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि ये तीनों तरफ से ये काम जो है अभी शायद तेजी से चलाया जाए। ऑगर, क्योंकि देखिए अभी आप मान लीजिए कई घंटों का वक्त ऑगर मशीन को बाहर निकालने में लगेगा। स्पेशल इक्विपमेंट्स जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी उसको कट करके बाहर निकालने में, और उसके बाद मैनुअली ड्रिलिंग होनी है। मेरी दाईं तरफ ये जो है यहाँ पर भी अब जो ड्रिलिंग है वो भी सूत्र बताते हैं कि वो शुरू की जाएगी। और वहां का रास्ता अगर मैं आपको बताऊं अनुराग, करीब 168 मीटर का वो रास्ता है जो तय करना होगा। Well, the frequent breakdowns in the auger machine is the hurdle that's delaying the rescue of the trapped workers. Now, the machine is beyond repair. In fact, a senior official involved in the operation has said that every time the machine hit an obstruction, it had to be pulled back 50 meters and pushed back after repairs. Now, the entire process would set the rescuers back by 5 to 7 hours. Now, what we are expecting is that as soon as the new drilling machine comes, the rescue operations can start. And what officials also are telling us, even the Chief Minister has informed that manual drilling could only start by tomorrow. सभी हमारे जितने भी टीमें हैं, एजेंसीज हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति आएगी तो अन्य विकल्प पर भी विचार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 41 श्रमिक हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती को पार करना हमारे लिए एक बड़ी बात है। और सीधी सी बात एक और है कि ऐसी जगह पे ऐसी समस्या आना एक सामान्य बात भी कह सकते हैं, और उसके लिए हम तैयार भी हैं, और उसके अगले के लिए हम लोग कदम बढ़ा। I'm happy. Everyone's well. Yeah. Everyone's So well. what did you get to know about the trapped men who are inside? Just tell us. Well, they're well. They're well? They're well. Yeah. They're well, absolutely fine. Absolutely Healthy. fine. Healthy. Okay. So we have a rescue. We don't have a disaster. Yeah, we have a that's rescue. good. Yeah. Yep. All right. So how much time should we expect for this rescue operation to finish? Bilal, please be slow. As I always have said from day one, Yeah. they'll be singing Christmas carols. Okay. I don't know. Well, the wait continues for the stranded workers to walk free. They're still stuck inside the tunnel. It's day 14, and Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has said the operations would conclude soon. Everybody is hoping for that. He's also said that the plasma cutter is being called in from Hyderabad to carry on with the operations. Meanwhile, the workers are constantly being supplied with food and other essentials. The families are also hoping against hope that their loved ones would be rescued soon. उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्बियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है। मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए। हम लोग यहाँ पर ठीक हैं, और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा, और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है।
और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है। Well, the rescue operations to save the 41 workers who've been trapped in the collapsed tunnel in Uttarkashi district faced another hurdle. This was on Friday evening as drilling had to be halted again. Now, Chief Minister also has said the manual drilling will now commence tomorrow. A specialized machine from Hyderabad is being brought to cut the auger machine that's now trapped inside the tunnel. We are learning that the blades will have to be cut through in order to bring out the parts of the auger machine that are stuck inside, and a specialized machine is being brought from Hyderabad. That's a special cutter blade, we are learning, that is being brought in order to cut through the blades that are stuck inside the tunnel, and then only the rescue operation could start. All right, my colleague Abhishek Sinha is also now joining us on the broadcast. He's on the ground tracking the developments there. Abhishek, अभी क्या बता सकते हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है उस जो स्पेशलाइज्ड मशीन मंगवाई गई है उसे आते तक शाम हो सकती है और काम जो है शायद कल ही स्टार्ट हो पाएगा। देखिए, अगर स्थिति की बात करूं तो अभी बिल्कुल जीरो की स्थिति पे हैं हम लोग। और अगर हम बात करें कल शाम 7:30 बजे ऑगर मशीन जब फंसती है और अब तकरीबन देखिए 3:30 बज रहे हैं, तकरीबन 20 घंटे बीत चुके हैं और 20 घंटे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ 3 मीटर का एक लोहे की चीज काट पाए हैं और पूरी ऑगर मशीन जो है उसकी 26 मीटर अंदर वो पाइप में फंसी हुई है। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं जो 41 लोग हैं अंदर जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए अब प्लान 2 की तैयारी शुरू की गई है। 14 दिन हो चुके हैं, 14 दिनों में प्लान ए सक्सेस नहीं हो पाया और अब वर्टिकल प्लान 2 की बात की जा रही है। देखिए, मैं आपको पीछे तस्वीर दिखाना चाहूंगा कितना मुश्किल है वर्टिकल प्लान 2। देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं 1200 मीटर लंबी सड़क है। ये जहां पे पहली ये जेसीबी खड़ी है इसके ठीक ऊपर, ये देखिए इस पहाड़ के ठीक पीछे, देखिए मैं कैमरामैन कमलकांत जी से कहूंगा थोड़ी तेजी से दिखाएं। इस पहाड़ के ठीक पीछे 400 मीटर आगे उस जगह को चिन्हित किया गया है जहां से ड्रिलिंग करनी है जी। और वहां पे अभी अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो वहां पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाना है, क्योंकि मशीन बहुत बड़ी है, 150 फुट लंबे उसके ड्रिलर हैं और उन मशीनों को वहां पर रख के ड्रिल करना है। वो कितना सुरक्षित होगा ये अपने आप खुद समझ सकते हैं। उस पहाड़ पे, जिस पहाड़ में ऑलरेडी नीचे एस्केलेशन चल रहा है, खूब ज्यादा उसमें पत्थर आ रहे हैं लगातार, इसी वजह से वहां नीचे मलबा साफ नहीं कर पाए। और लगातार देखिए, मैं आपको वो खबर बता रहा हूं जिस खबर की वजह से हम 41 लोगों की जिंदगी यहां पे लगातार जूझ रहे हैं अंदर, और यहां पे किसी को कोई सही जवाब देने वाला नहीं है। अब प्लाज्मा ब्लेड की बात आ गई। पहले इतने दिन से भाई 14 दिन से आप क्या कर रहे थे? 14 दिन में आप प्लाज्मा ब्लेड क्यों नहीं मंगा पाए? रोज यहां पे परेशानी आ रही है, आप गैस कटर से क्यों काम चला रहे थे? हिंदुस्तान की तमाम बड़ी एजेंसियां यहां पे काम कर रही हैं, तो आखिर आपने प्लाज्मा ब्लेड 14 दिन बाद क्यों ऑर्डर कर रहे हैं, जब आपको पता है प्लाज्मा ब्लेड अच्छा है और गैस कटर से बेहतर रिजल्ट है उसके, जो 1 घंटे में 4 मीटर काटेगा, तो आपने पहले क्यों नहीं मंगाया? तो इस बारे में कोई जवाब देने को तैयार है या नहीं? अभी भी इस बारे में अगर आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो क्या आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है ऑफिशियल्स के थ्रू? देखिए, ऑफिशियल्स के थ्रू यहां पर कोई ऐसा पुख्ता जवाब नहीं दिया जा रहा, सिरे से बातें निकाल दी जाती है। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि 14 दिन में आपके पास प्लाज्मा कटर क्यों नहीं है? आप गैस कटर से काम क्यों चला रहे थे जब लगातार हडल्स आ रहे हैं, लगातार गैस कटिंग से आप घंटों में काम करवा रहे हैं, जो कि बेहद ज्यादा रिस्की है उस जगह पे जहां ऑक्सीजन नहीं है। आज आप प्लाज्मा कटर का एक और नया शिगुफा लाते हैं। 14 दिन से आप क्या कर रहे थे? 14 दिन में आप प्लाज्मा क्यों नहीं खरीद पाए? तो अभिषेक, तो ऐसे तमाम सवाल हैं। जी बिल्कुल, बड़े सवाल हैं ये जो पूछे भी जाने चाहिए, पर अभी वहां मजदूरों के बारे में क्या बताया जा रहा है? जो वर्कर्स फंसे हुए हैं उनसे अभी भी कांस्टेंट कम्युनिकेशन हो पा रहा है? क्या उनकी हालात ठीक हैं अंदर? देखिए, उनके अगर परिवार वालों की बात माने
तो उनके हिसाब से कुछ मजदूर वहां पे बीमार हो गए, उन्हें बीपी हो गया है, उनके सर में दर्द हो गया है, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आ रही हैं जो उनके परिवार वाले दावा करते हैं। लेकिन वहीं सरकार का कहना है ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब बातें भ्रामक हैं। अब देखिए, ये बात यहां से समझने की कोशिश कीजिए, परिवार बाहर घूम रहा है, वो लोग अंदर हैं, लगातार संपर्क बन भी रहा है। अब किसकी बातों पे भरोसा करें? परिवार की बात पे भरोसा करें या सरकार की बातों पे भरोसा करें? जीपीआर रिपोर्ट के हवाले से कल ये कहा गया कि 5 मीटर तक रास्ता साफ है, ये सरकार ने हवाला दिया इसका। लेकिन 5 मीटर जैसे ही ऑगर मशीन चलती है आगे 1.5 मीटर पर फंस जाती है। 1.5 मीटर के बाद वो जब फंसती है तो उसमें बताया जाता है आयरन रॉड्स आ गई हैं बहुत सारी, जिसकी वजह से ऑगर मशीन रुक गई। अरे भाई, आपके दावे थे भाई 5 मीटर, जीपीआर रिपोर्ट का आपने हवाला दिया था, तो क्या वो सच था या गलत था? ये बड़ा सवाल है। देखिए, जिसकी वजह से ये देरी हुई है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ग्राउंड जीरो पे आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। 14 दिन से मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज निकलेंगे, कल निकलेंगे, परसों का वादा हो गया, नरसों का वादा हो गया। ये इन लोगों ने वादा किए हैं हमेशा। ये अगर सही वादे होते, सही हवाला देते, तो उन रिपोर्ट्स का क्या वो तो अभी क्या कहा जा रहा है कि ऑगर मशीन के पार्ट्स जो हैं अंदर फंसे हुए हैं, यानी कि क्योंकि ऑगर मशीन ठीक से काम नहीं कर पाई और उसके पार्ट्स अंदर फंसे हुए हैं, यही बताया जा रहा है। देखिए, ऑगर मशीन ठीक से काम कर रही है। बात है जिस जगह ऑगर मशीन को काम करना चाहिए वहां पे ऑगर मशीन को चलाइए आप। जहां मैनुअली काम करना है, जहां पे पहले से बेहद सारी रुकावटें हैं, आपने उस ऑगर मशीन को वहां पे घुसवा दिया जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे आयरन्स की रॉड्स थी। आपका सर्वे रिपोर्ट के ऊपर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं, आपने किस तरह के सर्वे कराए? अगर सर्वे ठीक होता तो ऑगर मशीन नहीं फंसती, मैनुअली ड्रिल होके 24 घंटे में आ जाते वो बाहर। लेकिन ऐसा किसी ने सोचा नहीं। किसने ऑगर मशीन अंदर घुसवाई, ये अपने आप में सवाल है। जब आगे रुकावट थी तो आपने क्यों नहीं बताया? अगर जियो सर्वे रिपोर्ट जो आपने कराई है, जीपीआर रिपोर्ट जो आपने कराया है, उसका क्या? आपने हवाला दिया था 5 मीटर, बिल्कुल क्लियर है रास्ता। उसके बाद ठीक है, yes, we do understand the situation at the moment on the ground is quite tense. We do understand, अभिषेक, और आप भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और वहां सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि जवाब मिलने में थोड़ी देरी हो रही है और आप बता रहे हैं कि ठीक तरीके से जो है वहां पर सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं और क्या सिचुएशन है अभी ठीक तरह से वो नहीं बताया जा रहा है। हालांकि आप अपनी नजर बनाए रखें एंड will be tracking the developments there, and Abhishek, my colleague, continues to be on the ground bringing us all the latest updates. With that, it's time for